Hello students, welcome to my channel. In the last video, we have started monotonicity, it is increasing and decreasing functions. I have explained some basic concepts. Today I will explain monotonicity for differentiable function. Monotonicity means increasing and decreasing behavior of a function for a differentiable function. For differentiable functions you can write. Students, if a function is differentiable, obviously the function is continuous. There will be no break, there will be no sharp corner. At every point we can draw unique tangent. Okay. तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, देखो मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ. थ्रू दिस ग्राफ वी विल इजीली अंडरस्टैंड. This graph I have already taken in the last video also. Let's say this is y equal to fx. This is clearly differentiable and continuous in its domain. Domain means from A to B. If I mark this point A and this point B, this is a domain. This is again from the graph it is understood that it is increasing. हम आगे जाएंगे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, means as we will increase x, y will increase, the value of the function will increase. Okay. Today our focus is using derivative, how we can decide a function is increasing or decreasing. Let me take decreasing function also. This graph is actually strictly increasing or also increasing. These are the coordinate axis, x axis, y axis. Let's say you have one more graph which is decreasing. Okay, this is again y equal to fx, defined in its domain. Okay, this is, let's say, a, this is b. This function is strictly decreasing. Okay, how we introduce derivative to study increasing and decreasing behavior? बहुत इजी है स्टूडेंट. देखो अगर हम एक पॉइंट लेंगे ऑन द कर्व के ऊपर एक पॉइंट हम लेंगे एंड एट दैट पॉइंट इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट. Let's say this point is any point, arbitrary point x. This tangent you can draw anywhere in this increasing portion. So this point is variable point, it can be taken anywhere from A to B. If you closely look, the angle made by tangent with positive direction of x axis is theta, which is an acute angle. First you catch this point. Increasing function के ग्राफ के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट पर इन बिटवीन द डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर थीटा एक्यूट है स्टूडेंट, tan थीटा पॉजिटिव होगा. आ रहा है समझ में? tan थीटा मतलब स्लोप, वी नो स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड इन टेंजेंट नॉर्मल वी हैव स्टडीड स्लोप इज नथिंग बट d over dx. So this is the condition for strictly increasing function, student. This is the condition for strictly increasing function. Positive means this implies dy by dx, or you can say f dash x जो कि greater than 0 होगा. Understood? This is very easy to understand that अगर dy by dx greater than 0 होगा तो function will be strictly increasing. In increasing there is a slight change, we can put equal to sign also.
क्योंकि इंक्रीजिंग में ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी आ सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एट द टाइम टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन दैट केस योर स्लोप विल बी 0, मींस dy by dx will be 0. In case of decreasing, you can easily observe if I take a point P, let's say this point is P, and this is being taken anywhere from this point to this point. This point is your x, means x equal to x. From origin to this point is x, ठीक है। अगर हम यहाँ भी टेंजेंट खींचेंगे स्टूडेंट्स, अभी देखो in decreasing graph the angle made by tangent with x axis, let's say this is theta, in decreasing graph theta will be always obtuse angle, more than 90 आएगा, decreasing में always less than 90 आएगा, decreasing increasing में less than 90 आएगा, decreasing में the angle made by tangent at any point on the graph will make obtuse angle. अगर theta obtuse है tan theta negative है, this is from trigonometry. If you know HTC rule, अगर थीटा मोर देन 90 होगा तो tan थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मींस m नेगेटिव। स्लोप क्या है? We have studied in tangent normal chapter. Slope is nothing but derivative of the function, first derivative of the function. So this condition is for, this implies dy by dx, negative मतलब less than 0. This is the condition for strictly decreasing function, ठीक है। Then we will make a table, note it. So here I have discussed for decreasing what is the derivative condition. First derivative should be negative for strictly decreasing, and for strictly increasing first derivative should be greater than 0, ठीक है। Next you write note. देखो स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ मैंने लिया था पिछले क्लास में, लेट्स से ये ग्राफ लाइक दिस, ऐसे जा रहा है ऊपर, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर जा रहा है। अगर तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं एक पॉइंट ले जाऊंगा, वहाँ टेंजेंट खींचूंगा, तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। सो इन दिस interval your dy by dx, let's say this curve is y equal to fx, in this case your dy by dx will be 0. यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, तो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। बट इंक्रीजिंग पोर्शन में जहाँ बढ़ रहा है वहाँ अगर देखेंगे हम, वहाँ पर टेंजेंट इक्विट एंगल बनाएगा, मतलब फॉर दिस पोर्शन योर dy by dx ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी dy by dx पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग में dy by dx का वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 होगा। दिस आई वांट टू से, तो ऐसे लिखेंगे ए फंक्शन y equal to fx is said to be, first point, strictly increasing. This I am discussing for डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम बेसिक डेफिनेशन से देखेंगे, जो मैंने कल बताया था लास्ट क्लास। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ dy by dx, or you can write f dash x greater than 0. Number 2, increasing if dy by dx greater than or equal to 0. Third, strictly decreasing if dy by dx less than 0. Less than 0 मतलब negative. Fourth, decreasing if dy by dx is less than equal to 0.
So these conditions you have to remember. Okay. So today we will do some problems using this condition. Using derivative we will find out. Actually our target will be to determine interval in which a function is increasing. लास्ट क्लास मैंने बताया था एक गिवन इंटरवल में उसका कुछ सब इंटरवल में इंक्रीज होगा और कुछ सब इंटरवल में डिक्रीज होगा, उस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। अगर पूरा इंक्रीज होगा तो पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे, पूरा डिक्रीजिंग होगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। बट इंक्रीज डिक्रीज अगर ऐसे मिक्स होकर होगा फंक्शन तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द intervals where following functions are increasing। हम क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा हम देखेंगे। आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट बिट fx is equal to let's say I am taking 3x plus 7। second bit fx is equal to 7 minus 8x। third fx is equal to और एक बात स्टूडेंट्स, every strictly increasing functions are increasing but increasing functions are not necessarily strictly increasing. Strictly increasing is also known as increasing, but increasing are not known as strictly increasing. Similarly, strictly decreasing functions are decreasing, but converse is not true. Decreasing functions को हम strictly decreasing नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट क्या देखो, 3x square minus 4x plus 5। fourth bit fx is equal to minus x square plus 2x minus 3। fifth bit fx is equal to, let's say you have 2x cube minus 9x square plus 12x minus 15। Students, to solve this type of questions हमें inequality solve करना आना चाहिए, जो हम वेवी कर्व मेथड पढ़ते हैं वो आना चाहिए हायर पॉलिनोमियल के लिए। तो पहले स्टेप्स क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं हुआ है, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है। तो पहला काम हमको फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना होगा। Even if you see in all the 5 questions you have polynomial functions। polynomial functions का डोमेन R होता है, you can note it। डोमेन मतलब इनपुट, x का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। तो इसका तो हम ग्राफ नहीं करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे। इसका जब ग्राफ आएगा वो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा वो तो हमें जानना जरूरी है। वहां से हम इंटरवल सर्च करेंगे, कौन से इंटरवल में इंक्रीज होगा, कौन से इंटरवल में डिक्रीज होगा। तो all polynomial functions have domain as R। this you should keep in mind। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा तो उसका डोमेन हम ब्लाइंडली R ले सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, x की जगह कुछ भी रियल नंबर डालो ये डिफाइंड होगा, हमेशा डिफाइंड होगा। पॉलिनोमियल होना चाहिए, नॉट रेशनल। रेशनल भी कुछ अलग होगा। तो क्योंकि हर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है तो सबके सब का डोमेन R है। तो फर्स्ट बिट को देखो, fx
को तुम y भी लिख सकते हो, fx जो होता है y वही होता है इक्वल टू 3x प्लस 7। हम एनालाइज करेंगे बिना ग्राफ के थ्रू भी हम एनालाइज कर पाएंगे, बट मैथमेटिकली लेट अस स्टडी। तो हमेशा ये क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव हम डी ओवर डी एक्स निकालेंगे जो कि तुम्हारा f x भी होगा। 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव 3। हाँ, इससे पहले डोमेन लिखना होगा, इसका डोमेन है R। तो डोमेन में हम चेक करेंगे, केयरफुली सुनो, जो मैंने f x निकाला इस फंक्शन का 3 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे ये पॉजिटिव है। इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये x के ऊपर डिपेंड भी नहीं कर रहा है, x की वैल्यू कुछ भी डालो ये f हमेशा 3 ही आएगा। तो मतलब मैं लिखूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये लाइन समझ में आ गया? तो x का हर वैल्यू के लिए तुम्हारा f पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, fx मतलब जो दिया है क्वेश्चन में, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। You can also write only increasing because strictly increasing functions are also increasing. Fx is strictly increasing in R. In R मतलब in set of real number। जब हम इसका ग्राफ करेंगे ये completely increasing आएगा। In fact it is a straight line। अगर हम 3x plus 7 का ग्राफ करेंगे एक straight line आएगा। From negative infinity to positive infinity there will be a straight line having positive slope, क्योंकि यहाँ पर स्लोप मतलब बेसिक्स पॉजिटिव आया है। तो क्योंकि ये पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कभी भी नहीं होगा, एंड डिक्रीजिंग नो है। तो अगर कोई पूछेगा डिक्रीजिंग का हम इंटरवल क्या लिखेंगे, इंटरवल 5 लिखेंगे, कुछ भी नहीं। देयर इज नो इंटरवल वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली decreasing। In the same line you can do second bit also। सेकेंड बिट में क्या होगा, सेकेंड बिट में fx दिया है, fx और यू कैन से y 7 माइनस 8x, इसका भी डोमेन R है। स्टूडेंट्स जनरली फॉरगेट टू राइट डोमेन इन एवरी क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वी शुड राइट डोमेन एंड इन दैट डोमेन वी विल एनालाइज the increasing and decreasing behavior of the function। फिर अभी हम क्या करेंगे, what we will do, f(x) निकालेंगे जो कि d over dx, it will be 7 तो कांस्टेंट 0 है, माइनस 8x का डेरिवेटिव माइनस 8। इसमें भी f(x) का वैल्यू डायरेक्टली एक कांस्टेंट आ गया जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा कि एक नेगेटिव नंबर है, मतलब ये नेगेटिव ऑलवेज लेस देन 0, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x का वैल्यू कुछ भी डालो f(x) हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमेशा नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। यू रिमेंबर f(x) पॉजिटिव इंक्रीजिंग, f(x) नेगेटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। सो वी विल राइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि डोमेन R है तो डोमेन में कुछ भी नंबर लेकर डालो f(x) में, वो हमेशा -8 आएगा जो कि नेगेटिव है। सो f(x) इज strictly decreasing and this type of function is monotonic, क्योंकि पूरे डोमेन में ये strictly decreasing हो रहा है, पिछला क्वेश्चन strictly increasing, ऐसे फंक्शन को हम monotonic functions बोलेंगे। strictly decreasing in मतलब I am going to write down the interval, in this interval R, and increasing nowhere, increasing nowhere, ये कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। अंडरस्टूड और नॉट? देन हम लेंगे थर्ड बिट। थर्ड बिट में एक क्वाड्रेटिक दिया है। थर्ड बिट में क्या है देखो स्टूडेंट, तो लीनियर वाला क्वेश्चन इजीली हो गया, क्वाड्रेटिक भी इजीली हो जाएगा। क्यूबिक में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत तो नहीं, अगर तुम्हें इन इक्वेशन सॉल्विंग आता है तो हो जाएगा। y इक्वल fx इक्वल ये क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसका भी डोमेन R आएगा।
यू रिमेंबर स्टूडेंट, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्वाड्रेटिक का हमेशा पैराबोला होगा, पैराबोला अपवर्ड नहीं तो डाउनवर्ड होगा। हम ग्राफ नहीं करेंगे, बिना ग्राफ के करेंगे, थ्रू डेरिवेटिव वी कैन इजीली आंसर। तो इसमें dx या फिर f(x) कितना होगा 6x - 4, इसको डेरिवेटिव करो 6x - 4, ये डेरिवेटिव आ गया। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अभी थोड़ा एनालाइज करो, x का कुछ कुछ वैल्यू के लिए 6x - 4 पॉजिटिव बनेगा, कुछ कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव बनेगा, कुछ कुछ वैल्यूज के नेगेटिव बनेगा। तो हाउ टू हैंडल दिस, हम कैसे सर्च करेंगे x का कौन सा वैल्यू में ये पॉजिटिव होगा, कौन सा वैल्यू में ये नेगेटिव होगा। जब जब पॉजिटिव होगा तब तब इंक्रीजिंग होगा, जब जब नेगेटिव होगा तब तब डिक्रीजिंग होगा। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x का कोएफिशिएंट कॉमन ले लो, x - 4/6, और क्या कर सकते हैं, x - 6 को कैंसिल करेंगे तो 2/3 आएगा। केयरफुली सुनो, अगर मैं x का वैल्यू 2/3 डायरेक्टली लूंगा, ये 0 बनेगा, तो डेफिनेटली 2/3 पर मतलब ये ब्रेक होगा, 2/3 के राइट में कुछ होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो 2/3 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, क्योंकि 2/3 पर 0 हो रहा है। तो हम एक चीज लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मैंने आई हैव नॉट डिस्कस्ड बट यू रिमेंबर, क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं x का जिस वैल्यू के लिए तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का फायदा क्या है, देखो, क्रिटिकल पॉइंट इज x = 2/3। हाउ आई रिटन दिस, जो भी डेरिवेटिव्स बना है उसको उस फैक्टर को 0 बना दो, 0 बना के x का वैल्यू निकालो, जो आएगा वो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट। अंडरस्टूड। फिर देखो स्टूडेंट, मेथड में सिखा रहा हूँ, पहले मैंने डोमेन लिखा, फिर डेरिवेटिव निकाला, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे साइन स्कीम ऑफ f(x). एक्चुअली दिस आई हैव नॉट डिस्कस्ड, आई वांट टू डिस्कस थ्रू प्रॉब्लम ओनली। साइन स्कीम ऑफ f(x), दिस मेथड वी विल अडॉप्ट इन एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तभी क्या करेंगे, डोमेन एक नंबर लाइन बनाएंगे जहां पर हम डोमेन लेंगे, r मतलब नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2/3, इनके बीच में 2/3 तो जरूर आएगा, 2/3 तो एक नंबर होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जब 2/3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, पूरे डोमेन इज रिड्यूस्ड टू 2 इंटरवल्स, एक होगा -∞ टू 2/3 और एक होगा 2/3 टू इंफिनिटी। अभी देखो स्टूडेंट, 2/3 के आगे हम हेडिंग मैंने क्या डाला, साइन स्कीम ऑफ f(x), मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर जो जो इंटरवल बना है -∞ टू 2/3 एंड 2/3 टू इंफिनिटी, इस इंटरवल में f(x) का साइन क्या होगा, इस इंटरवल में f(x) का साइन क्या होगा, दैट आई वांट टू राइट। तो 2/3 के आगे रिमेंबर स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा सुनो, 2/3 टू इंफिनिटी में एक नंबर ले जाओ, कुछ भी एक नंबर, रैंडमली नंबर ले जाओ, लेट्स से 10 तो जरूर आएगा, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कुछ भी, बट 2/3 से ज्यादा लेना होगा। लेट मी टेक 10, वो लेकर तुम f(x) में डालो, f(x), दिस यू मेक बॉक्स। हम लिख रहे हैं साइन स्कीम ऑफ f(x), सो f(x) मतलब dx में पुट करेंगे, फिर इसका साइन निकालेंगे, साइन मतलब SIGN, ये पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव साइन मैंने इधर लिखा। फिर इसके लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेफिनेटली होगा। 2/3 से कम एक नंबर ले जाओ, बहुत सारे नंबर है, यू रैंडमली पिक एनी नंबर, लेट्स से 0 0 तो इससे पहले आएगा ना, 0 डालो या नेगेटिव आएगा। जहां पॉजिटिव आ रहा है वहां इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव आ रहा है वहां डिक्रीजिंग होगा। दिस थ्योरी आई हैव एक्सप्लेन, जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अभी हम कंक्लूजन लिखेंगे, hence f(x) is increasing in, ये इंटरवल हमें लिखना होगा, यू कैन पुट क्लोज इंटरवल। अगर इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट पर हम क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ओपन इंटरवल लेंगे। एंड डिक्रीजिंग इन -∞ टू, यू रिमेंबर स्टूडेंट, इंफिनिटी और -∞ में कभी भी क्लोज नहीं आएगा, यू मेक दिस पॉइंट।
कभी भी इंटरवल में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए वो हमेशा ओपन में होगा। अंडरस्टूड? ये एक क्वेश्चन था। इन द सेम लाइन वी कैन डू नेक्स्ट बिट, फोर्थ बिट। तो क्वाड्रेटिक के आगे हम करेंगे क्यूबिक। फोर्थ बिट में और एक क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन को आइदर यू कैन नेम इट एफ एक्स और y, दोनों के दोनों सेम होते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। डोमेन क्या है? डोमेन अगेन विल राइट r, बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल। फिर हम निकालेंगे d ओवर dx या फिर f डैश x, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2x प्लस 2। डेरिवेटिव हमें आना चाहिए। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 1। फिर अभी मैं लिखूंगा क्रिटिकल पॉइंट इज, इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो है x इक्वल टू 1। क्रिटिकल पॉइंट तो मैंने बता दिया, डेरिवेटिव का जो भी फैक्टर होगा उसको हम जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम करेंगे साइन स्कीम ऑफ f डैश x। f डैश x लिखो, d ओवर dx लिखो, दोनों चीज सेम होता है। तो नंबर ले लेंगे, डोमेन माइनस, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 बीच में आएगा। अभी देखो थोड़ा अलग हो रहा है, 1 के आगे एक नंबर बताओ मुझे, 1 के आगे एक नंबर 2, that we will always put in f dash x student, remember, not in fx. We are interested to know sign scheme of f dash x, not fx. f dash x का साइन हमें बताता है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा और कहाँ डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, नंबर लेते हैं बट fx में डाल देते हैं, वो गलती है, वो गलत है। तो f dash x में हम हमेशा पुट करेंगे 1 के आगे नंबर 2 ले जाओ। ये फैक्टर तो पॉजिटिव बन रहा है बट केयरफुली देखो बाहर एक नेगेटिव साइन है, इसीलिए अभी यहाँ नेगेटिव होगा, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव होगा। यू कैन वेरीफाई, 1 से पहले एक नंबर ले जाओ 0, 0 लेकर f dash x में डालो, 0 माइनस 1 नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो फाइनली पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग मतलब डाउनवर्ड एरो, इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड एरो। इंक्रीजिंग को शॉर्ट में तुम अपवर्ड एरो दे सकते हो, डिक्रीजिंग को डाउनवर्ड एरो दे सकते हो। फिर अभी कंक्लूजन, हेंस fx is increasing in, you remember student, कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का अगर इंटरवल लिखेंगे क्लोज इंटरवल नहीं देंगे, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में हम क्लोज इंटरवल दे सकते हैं। इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 1, कैसे पता चला? क्योंकि इस इन दिस इंटरवल योर साइन f डैश x का साइन पॉजिटिव है, इन माइनस इंफिनिटी टू 1, एंड डिक्रीजिंग इन 1 to इंफिनिटी। ये जो दोनों इंटरवल में जो कॉमन पॉइंट है 1, दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट, यू कैन से टर्निंग पॉइंट। मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे माइनस इंफिनिटी टू 1 तक इंक्रीज होगा, फिर 1 में थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, जहां ग्राफ टर्न करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। आई विल ऐड वन मोर क्वेश्चन लेटर, पहले मुझे बताने दो फिफ्थ बिट क्या है। ये एक क्यूबिक है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। ये भी क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसका भी डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। दिस वी नो फ्रॉम स्कूल मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है। इसको तुम y भी लिख सकते हो, तो d ओवर dx या फिर f डैश x, इसका डेरिवेटिव करो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया होगा वो फैक्टराइज होगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखें क्या होगा ये। एक बात याद रखो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब हमने किए उसका एक क्रिटिकल पॉइंट आया, जब हम क्यूबिक का करेंगे इन जनरल 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा। मतलब डेरिवेटिव एक क्वाड्रेटिक बनेगा, वो आगे फैक्टराइज होकर 2 लीनियर फैक्टर बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। लेट मी टेक 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर दिस यू कैन इजीली फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 2x माइनस x प्लस 2। 6 टाइम्स में डायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो x माइनस 2 बनेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा मतलब x माइनस 1 बनेगा।
So the critical points are, actually students, you remember critical points can also be written in this way by equating f dash x equal to 0. इसको हम 0 इक्वल करेंगे फिर x का वैल्यू निकालेंगे. मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, x equal to 1 होगा, x equal to 2 होगा. How I am saying, I am observing the two factor and I am making mentally each factor 0 and writing down the x. ये कब 0 बनेगा, x जब 1 होगा. ये कब 0 बनेगा, जब x 2 हो. तो there are two critical points. ठीक है. Now what we will do? We will determine sign scheme. Method तो पता चल गया. हर क्वेश्चन ऐसे ही हम करेंगे. Now we will find out sign scheme of f dash x. Sign scheme ठीक से समझने के लिए कोशिश करो. यही तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन तुम्हारा सेट ऑफ रियल नंबर है. तो डोमेन पहले नंबर लाइन पर वो डोमेन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एक नंबर लाइन होगा. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 2. वी विल लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. दिस आल्सो यू रिमेंबर. रैंडमली हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. पहले कौन आएगा, 1, उसके बाद में 2 आएगा. फिर अभी देखो स्टूडेंट, 2 के आगे एक इंटरवल 1 और 2 के बीच में एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 और एक इंटरवल. मींस देयर आर 3 इंटरवल्स. अभी हम क्या करेंगे, 2 टू इन्फिनिटी में एक नंबर चूज करेंगे. उसको टेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं स्टूडेंट. मैं बोलने के लिए भूल गया. टेस्ट पॉइंट, हर इंटरवल में से एक एक टेस्ट पॉइंट लेंगे. पहले इसमें से जब मैं लूंगा तो x इक्वल टू 3 आएगा. ये आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफली तुम कर सकते हो. वो लेकर तुम क्या करो, f dash x में पुट करो. ये है तुम्हारा f dash x. यहाँ पुट करके कैलकुलेशन करना इजी होगा. ठीक है. f dash x का ही तो सिंप्लीफिकेशन है ना यहाँ तक. तो अगर मैं x इक्वल टू 3 चूज करूंगा, 2 के आगे तो 3 डेफिनेटली होगा. 3 minus 2 पॉजिटिव, 3 minus 1 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव. सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. तो यहाँ पॉजिटिव मतलब यहाँ इंक्रीजिंग होगा. फिर 1 और 2 के बीच में क्या होगा, एक टेस्ट पॉइंट ले जाओ 1.5 लेट्स से. इनके बीच एक नंबर आएगा 1.1 1.2. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. यू रैंडमली सिलेक्ट 1.5. उसको लेकर f dash x में डालो. 1.5 minus 2 नेगेटिव, 1.5 minus 1 पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव बन रहा है. नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग. इन दिस वी टेक टेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स. फिर 1 से पहले एक टेस्ट पॉइंट लेना होगा जो कि डेफिनेटली 0 आएगा. 0 लेना इजी होगा कैलकुलेशन करने में. 0 minus 2 नेगेटिव, 0 minus 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव बन रहा है. सो माय एडवाइस is that from every interval you select test point and that test point you put in f dash x, then find its sign, then you write in this number line. ठीक है. ऐसे हम टेस्ट पॉइंट लेकर f dash x का साइन निकालेंगे. जहां जहां पॉजिटिव लिखा है वो इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग होगा. तो अभी हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन. हेंस fx इज इंक्रीजिंग इन. देखो यहाँ पॉजिटिव है मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन. एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ यूनियन लिखना गलत है, बट बुक में यूनियन ही दिया जाता है. बीच में हमें एंड लिखना बेहतर होगा. इस इंटरवल में इंक्रीज होगा एंड इस इंटरवल में इंक्रीज होगा. यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम यूनियन नहीं करेंगे, एंड लिखेंगे. बट मोस्ट ऑफ द बुक में यूनियन दिया है आंसर में. ठीक है. एंड fx इज डिक्रीजिंग इन. यहाँ नेगेटिव लिखा है ना, तो 1 2. So this is the interval student where your function is decreasing. This is the interval and this is the interval where function is increasing. ठीक है. One more question I will take. क्यूबिक का ही लूंगा जहां पर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा क्यूबिक का. 6th bit y equal to fx equal to. You can write students. क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन है 20 minus 9x plus 6x square
माइनस एक्स क्यूब। देखेंगे क्या होगा। अगेन बीइंग दिस इज क्यूबिक, इसका भी डोमेन तो रियल नंबर ही होगा। और एक बार बोल रहा हूँ जो पिछला क्वेश्चन बताया था, इंक्रीजिंग का इंटरवल जनरली यूनियन में लिखा जाता है बुक में, बट एक्चुअल आंसर बीच में एंड होना सही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, फंक्शन आइदर यहाँ पर इंक्रीज होगा नहीं तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो इसलिए बीच में एंड लिखेंगे, बट डोंट पुट इंटरसेक्शन साइन। इंग्लिश में लिखेंगे एंड एंड। इसका मीनिंग क्या है, एफ तुम्हारा इंक्रीज यहाँ पर भी हो रहा है एंड यहाँ पर भी हो रहा है। इसका डोमेन तो आर है, तो फिर हम निकालेंगे डी ओवर डी एक्स, दैट इज एफ डेस एक्स। डेरिवेटिव करेंगे 20 का 0 -9 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव आना चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर में फंसोगे तुम लोग। -3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब टेकन -3 कॉमन, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था, तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 होगा। आई एम नॉट डूइंग इन डिटेल, यू कैन डू दिस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो क्वाड्रेटिक में मैंने एक बताया था, जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया, यहाँ इंफिनिटी यहाँ माइनस इंफिनिटी, साइन स्क्वायर ऑफ एफ डेस एक्स अभी हम करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 1 और 3, तो 1 इधर आएगा 3 इधर आएगा। 3 के आगे इस इंटरवल में हमें एफ डेस एक्स का साइन लिखना है। मैंने तो मेथड बता दिया, इस इंटरवल से रैंडमली कुछ भी नंबर पकड़ो, वो लेकर एफ डेस एक्स में डाल दो। 3 के आगे तो डेफिनेटली 4 होगा, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 - 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ये पूरा नेगेटिव बनेगा 3 टू इंफिनिटी इंटरवल में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। बट पिछला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, बट यहाँ नेगेटिव आएगा ड्यू टू दिस माइनस साइन। फिर वैसे 1 2 3 में चेक करो, टेस्ट पॉइंट लेकर, मैं भूल गया लिखने के लिए, ऐसे तुम रफ में लिखकर कर सकते हो। 3 टू इंफिनिटी में 4, फिर 1 2 3 में 2 ले सकते हो, फिर फाइनली यहाँ से 0 ले सकते हो। अगर तुम देखोगे ये फिर से पॉजिटिव आएगा, ये फिर से नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड? आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा। तो जहाँ पॉजिटिव वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव वहाँ डिक्रीजिंग। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, हेंस fx इज इंक्रीजिंग, बी केयरफुल, कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है देखो, एक ही इंटरवल में पॉजिटिव है f(x), तो वहाँ ही इंक्रीज होगा 1 2 3, इंक्रीजिंग इन 1 2 3 एंड डिक्रीजिंग इन, ये इंटरवल में नेगेटिव है, ये इंटरवल में नेगेटिव है, तो -∞ to 1 एंड, बट बुक में यहाँ पर यूनियन लिखा जाता है। सीबीएसई बुक में एंड लिखा है, बट सीएचएसई बुक में यूनियन लिखा है। एक्चुअली एंड इज करेक्ट आंसर, एंड लिखना सही होगा। यूनियन करेंगे तो डेफिनेशन वायलेट हो जाएगा, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए यूनियन नहीं दिया जाता है। बट फिर भी एग्जाम में मार्क कुछ कट होगा नहीं अगर तुम बाई चांस यहाँ पर यूनियन भी लिख डालो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हम करेंगे। अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस होगा तो हाउ वी डिटरमाइन द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, वन लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। वन लास्ट क्वेश्चन लिखो, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 is always increasing on R। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है जो कि क्यूबिक है, अभी तो हमने दो क्वेश्चन भी किए हैं, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इसका तो डोमेन आर है, वो भी लिखा है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे देखो, fx दिया है, fx मतलब y
4x cube minus 18x square plus 27x minus 7. You can write domain, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन R है. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन दिया है ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर भी डिक्रीजिंग नहीं होगा. तो प्रूफ कैसे होगा देखो, हम निकालेंगे f dash x दैट इज d over dx, इसका डेरिवेटिव करो 12x स्क्वायर, इसका आएगा 36x, इसका आएगा 27. एंड इफ यू सी यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. इफ यू लुक क्लोजली, ये 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ये 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस 2ab. इन 2ab फॉर्म इट इज अरेंज्ड 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब ये क्या बन रहा है 3 टाइम्स 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर. बट प्रीवियस जो मैंने दो क्वेश्चन किया था उसमें दो फैक्टर आ रहा था, इसमें एक ही फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है. तो अभी लॉजिक अप्लाई करो, 3 तो पॉजिटिव है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. आर यू गेटिंग? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 3 है, ये 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा. बट एक केस में 0 होगा, इसीलिए इक्वल टू 0 भी लिखेंगे. 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 3/2. इसके बारे में सोचो, इसको अगर हम 0 करेंगे तो x 3/2 आएगा, तो x इक्वल 3/2 पर ये 0 बनेगा. मतलब हम प्रूफ क्या किए कि जो f(x) जो भी निकल के आया है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. हमेशा मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. x का कुछ भी वैल्यू डालो, डोमेन से कुछ भी वैल्यू डालो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये किसका कंडीशन है, इंक्रीजिंग कंडीशन है. हेंस f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऐसे हम लिखेंगे. हेंस ये हमें शो करना है, ये हमें लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग on R. Okay student, this completes today's class. In the next video we will do some more problems. Okay, thank you to all, take care of yourself.